Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 16 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि सिर्फ इसका चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to read lesson 16, which is fundamental rights and fundamental duties. So let's start. Nowadays, terms like right to education, right to information and right to protest peacefully are being used quite frequently. Many a time you also feel that you have certain rights. Simultaneously, you may have been told by someone, maybe your teacher, that you have certain duties towards other individuals, society, nation, or the humanity. But do you think that every human being enjoys the rights or everyone performs the duties? Perhaps not. But everyone will agree that there are certain rights that must be enjoyed by individuals. Particularly in a democratic country like ours, there are rights that must be guaranteed to every citizen. Similarly, there are certain duties that must be performed by democratic citizens, which is why the Constitution of India guarantees some rights to its citizens. They are known as fundamental rights. Besides, the Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is expected to perform. These are known as fundamental duties. This lesson aims at discussing the details about the fundamental rights and fundamental duties. आजकल हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोई ना कोई ऐसे शब्दों का यूज जरूर करते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर कहीं पे प्रोटेस्ट करना है पीसफुली उसका अधिकार। ये आज हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि आपके पास भी कुछ आपके अपने राइट्स है। आप लोग ने कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा, शायद आपके टीचर से सुना होगा कि आपके कुछ ड्यूटीज बनते, आपके कुछ कर्तव्य है दूसरों के प्रति, आपके अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति या फिर मानवता के प्रति। पर क्या आप ऐसा सोचते कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं एज वेल एज कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं? शायद नहीं। लेकिन जितने भी लोग हैं वो इससे तो सहमत जरूर होंगे कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं हमारे कंट्री में, उनके पास कुछ ना कुछ राइट्स है। और पार्टिकुलरली डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे ये राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे सिटीजन को। और ये जो ड्यूटीज है वो भी डेमोक्रेटिक जो सिटीजन है हमारे, उन्हें परफॉर्म करना है। इसलिए हमारा जो संविधान है, इंडिया का जो संविधान है, वो हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स गारंटीज करता है और इसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। इन सब के अलावा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ड्यूटीज भी एनलिस्ट किए गए हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी हमारे सिटीजन है वो उसे परफॉर्म करे, और इस ड्यूटीज को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। इस लेसन में ये एम्स किया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन करके जानो कि ये चीज है क्या। Meaning and importance of rights and duties. We often talk about rights, but do you know what does the term rights mean? Rights are rules of interaction between people. They place constraints and obligations upon the actions of the state and individuals or groups. For example, if one has a right to life, this means that others do not have the liberty to kill him or her. Rights are defined as claims of an individual that are essential for the development of his or her own self and that are recognized by society or state. These are legal, social, or ethical principles of freedom or entitlement and are the fundamental normative rules about what is allowed to people or owed to people according to some legal system, social convention, or ethical theory. Rights are often considered fundamental to civilization, being regarded as established pillars of society and culture. तो हम लोग जब राइट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या
हमें ये पता होता है कि राइट्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। राइट्स वैसे रूल्स होते हैं जो पीपल को इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं, और इसमें जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं एक्शन के ऊपर, वो किसी भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास राइट है कि वो जिए, मीन्स उसके पास राइट टू लाइफ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे के पास लिबर्टी है कि वो उसे जाके मार दे। राइट्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि it is a claim of an individual that is themselves for the development of his or her own self and that are recognized by society or state। मीन्स अधिकार वह चीज है जो एक इंडिविजुअल क्लेम करता है उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाए सोसाइटी और स्टेट के द्वारा, और ये लीगल है, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल से किसी की फ्रीडम के लिए, जिसमें फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स है, जिसमें जो लोग हैं वो कुछ लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करें। यहाँ पे आपका सोशल कन्वेंशन आता है, एथिकल थ्योरी आता है, ये सब के बेस पे आप अपने राइट्स को कैसे लेते हो। राइट्स को हम लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल है हर एक सिविलाइजेशन के लिए, एंड जितनी भी हमारी सोसाइटी और जो कल्चर है इनका जो पिलर है, एस्टेब्लिशमेंट पिलर, वो राइट्स है। राइट्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, एक इंसान जी भी नहीं पाएगा। But the rights have real meaning only if individuals perform duties. A duty is something that someone is expected or required to do. Parents, for example, have a duty to take care of their child. You have duties towards your parents. A teacher has a duty to educate students. In fact, rights and duties are tools on which the chariot of life moves forward smoothly. Life can become smoother if rights and duties go hand in hand and become complementary to each other. Rights are what we want others to do for us, whereas the duties are those acts which we should perform for others. Thus, a right comes with an obligation to show respect for the rights of others. The obligations that accompany rights are in the form of duties. If we have the right to enjoy public facilities like transport or health services, it becomes our duty to allow others to avail the same. If we have the right to freedom, it becomes our duty not to misuse this and harm others. हम लोग तो राइट्स का मतलब कि जान गए कि राइट्स होते क्या है, लेकिन क्या जो रियल मीनिंग है आप उसको जान पाए कि राइट्स का रियल मीनिंग क्या है, और ये जो ड्यूटीज है वो कौन सी ड्यूटीज की यहाँ पे बात की जा रही है कि जिसे इंडिविजुअल्स परफॉर्म करे। ड्यूटी इज समथिंग दैट समवन इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू डू। कर्तव्य वह चीज है जिसे उम्मीद किया जाता है कि कोई इस चीज को करे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, वैसे आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज बनती हैं। एक टीचर की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, मीन्स अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करे, शिक्षित करे। इनफैक्ट जो राइट्स और जो ड्यूटीज है वो एक सिक्के के दो पहलू है, जिसपे आपका जो जीवन है वो आगे की ओर स्मूथली बढ़ेगा। लाइफ शॉर्टर स्मूथर हो सकता है, मीन्स आराम से व्यतीत हो सकता है, अगर आप अपने राइट्स को और अपनी ड्यूटीज को सही से निभाओगे। जो राइट्स है वो क्या है कि आप क्या चाहते हो वो आपके राइट्स है, और ड्यूटीज क्या है जो चाहते हैं दूसरे की वो आप उसे परफॉर्म करें। राइट के साथ ऑब्लिगेशन आता है जिसमें कुछ रेस्पेक्ट होते हैं दूसरों के लिए, वहीं जो एप्लीकेशन से वो हमारे राइट्स के साथ ड्यूटीज भी आते हैं जैसे दूसरे चाहते हैं कि आप उसे उनके प्रति करो। अगर हम राइट चाहते हैं कि हमारे पास राइट है कि हम पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट है या फिर हेल्थ सर्विसेज है हम लोग उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम दूसरों को भी ये चीज करने दें, मीन्स उन्हें भी उस फैसिलिटीज को यूज करने दें। अगर हम अपने राइट टू फ्रीडम को यूज करते हैं, ये हमारे पास है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इससे दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाए और इस राइट का हम लोग मिसयूज ना करें। Fundamental rights. As we have seen, rights are claims that are essential for the existence and development of individuals. In that sense, there will a long list of rights, whereas all these are recognized by the society. Some of the most important rights are recognized by the state and enshrined in the Constitution.
Such rights are called fundamental rights. These rights are fundamental because of two reasons. First, these are mentioned in the Constitution, which guarantees them, and the second, these are justiciable, that is enforceable through courts. Being justiciable means that in case of their violation, the individual can approach courts for their protection. If a government enacts a law that restricts any of these rights, it will be declared invalid by courts. Such rights are provided in Part 3 of the Indian Constitution. The Constitution guarantees six fundamental rights to Indian citizens as follows: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. While these fundamental rights are universal, the Constitution provides for some exceptions and restrictions. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे अधिकार है वो हम किसी के एग्जिस्टेंस या डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस सेंस में जाए तो जो अधिकार है उसके बहुत लंबे चौड़े लिस्ट निकल के आएंगे जहाँ पे ये सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और इसे इनलिस्ट भी किया गया है। ऐसे राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इस राइट्स को फंडामेंटल बोलने के दो कारण है। पहला कारण है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसे की गारंटी देती है, एंड सेकंड कारण है कि ये जस्टिसिएबल है, मीन्स ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल है। जस्टिसिएबल मीन्स होता है कि अगर इसका हनन हो, मीन्स आपके अधिकार का हनन हो, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर सरकार कोई कानून बनाती है और कोई किसी के अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करता है तो कोर्ट उससे डिक्लेयर करती है कि ये चीज इनवैलिड है, और ऐसे राइट्स को प्रोवाइड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज करता है 6 फंडामेंटल राइट्स को जो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी मीन्स बराबरी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी के अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स आपका जो शोषण हो रहा है उसके अगेंस्ट में मीन्स आप विरोध कर सको, आपके पास उसका अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप के पास जो रिलीजन है मीन्स आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो, आप कोई भी रिलीजन को चूज कर सकते हो, आपके पास इसके अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स आप किसी संस्कृति को अपनाना चाहते हो तो आप उसे अपना सकते हो, आपके पास शिक्षा के अधिकार है। एंड 6th इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के भी राइट्स है। और ये जो राइट्स है इसे फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है और ये यूनिवर्सल है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग को कुछ एक्सेप्शंस भी देता है एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी देता है इन राइट्स को देने के बाद। राइट टू इक्वालिटी, right to equality is very important in a society like ours. The purpose of this right is to establish the rule of law where all the citizens should be treated equal before the law. It has 5 provisions, Articles 14 to 18, to provide for equality before law or for the protection of law to all the persons in India, and also to prohibit discrimination on the grounds of religion, race, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो पर्पस है राइट, इसमें इस राइट का क्या पर्पस है, इसमें एक लॉ को स्टैब्लिश किया गया है जहाँ पे जितने भी सिटीजन्स है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने, मीन्स कानून सबके लिए बराबर है। और इसके 5 प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल्स 14 to 18 में लिखे गए हैं, जिसमें आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप इक्वल है, कानून के सामने आप इक्वल है एंड जितने भी इंडिया के पर्सन है उनका जो कानून है वो प्रोटेक्ट करेगा। और इसमें कुछ प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन जो भी होते हैं, जैसे कि लोग कहाँ का क्या धर्म है, वो किस जाति के है, उनका कास्ट क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उनका जन्म स्थान क्या है, इन सब के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, the Constitution guarantees that all citizens will be equal before law. It means that everyone will be equally protected by the laws of the country. No person is above law. It means that if 2 persons commit the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination. तो हमारा जो संविधान है वो यह बताता है कि जितने भी नागरिक हैं वो कानून के सामने इक्वल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो कानून के सामने उनका कानून इक्वली मतलब कि प्रोटेक्ट करेगा, प्लस उनको एक समान मानेगा और कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं है, मीन्स लॉ के ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो लोग हैं और वो सेम क्राइम को करते हैं तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. This is necessary to bring about social equality. Every citizen of India has equal access to shops, restaurants, places of public entertainment, or in the use of wells, tanks, or roads without any discrimination. However, the state can make special provisions or concessions for women एंड चिल्ड्रन। तो हमारा जो स्टेट है वो किसी के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी को, ना ही किसी नागरिक को कि आप किस धर्म से हो इसके नाम पे वो उसको भेदभाव उससे नहीं कर सकता, ना ही आप किस जात से हो, आप मेल हो या फीमेल, कहाँ आपका जन्म स्थान है, इसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे समाज में इक्वालिटी आ सके। जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं उनके पास इक्वल एक्सेस है कि वो किसी भी दुकान में जा सके, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट को वो एक्सेस कर सके, साथ में किसी भी वेल्स मतलब कुआं, टैंक्स या रोड्स को बिना किसी भेदभाव के वो यूज कर सके। हमारा जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं या कंसेशंस बनाते हैं वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। Equality of opportunity to all citizens in matter of public employment. The state cannot discriminate against anyone in the matter of public employment. All citizens can apply and become employees of the state. Merits and qualification will be the basis of employment. However, there are some exceptions to this right. This is a special provision for the reservation of posts for citizens belonging to scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes, OBCs. तो हमारा जो स्टेट है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। जितने भी नागरिक है वो स्टेट के में एम्प्लॉयज बन सकते हैं, वो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो बेसिस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मेरिट्स होने चाहिए और उनके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस राइट्स में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। जो सिटीजन वैसे नागरिक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी से अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। Abolition of untouchability. Practicing untouchability in any form has been made a punishable offense under the law. This provision is an effort to uplift the social status of millions of Indians who had been looked down upon and kept at a distance because of either their caste or the nature of their profession. But it is really very unfortunate that despite constitutional provisions, this social evil continues even today. Can you find any difference when you see a nurse cleaning a patient, a mother cleaning her child, and a lady cleaning a toilet in the illustration? Why do people consider the cleaning of a toilet in a derogatory manner? तो जो छुआछूत के जो भी कोई भी फॉर्म है उसे एक बहुत ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है कानून में। ये जो प्रोविजन है उसमें वैसे इंडियंस के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है जिनको ये माना जाता है कि वो नीची जाति से या फिर उनके प्रोफेशन के लिए उन्हें नीच माना जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यवश हम इसको कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये अनफॉर्चुनेट है, मीन्स हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके बावजूद हमारे समाज में ये जो बुराई है वो अभी भी व्याप्त है, मीन्स अभी भी ये कंटिन्यू चल रही है कि अभी भी लोग छुआछूत मानते हैं। क्या आप कोई भी डिफरेंस पाते हो? जो एक नर्स है वो पेशेंट को साफ कर रही है, या फिर जो मदर वो अपने चाइल्ड को साफ कर रही है, या फिर जो एक लेडी है वो एक टॉयलेट को क्लीन कर रही है, इसमें क्या मतलब कि ज्यादा आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? जो लोग हैं वो टॉयलेट को क्लीन करना एक डेरोगेटरी मैनर क्यों मानते हैं, कि इसे गंदा क्यों मानते हैं? Abolition of titles. All the British titles like Sir, Knighthood or Rai Bahadur, which were given to British loyalists during the British rule, have been abolished because they created distinctions of artificial nature. However, the President of India can confer civil and military awards to those who have rendered
meritorious service to the nation in different fields. The civil awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri, and the military awards like Veer Chakra, Paramveer Chakra, Ashok Chakra are conferred. Do you know that these awards are not titles? Educational and military awards can be prefixed with one's name. तो जितने भी ब्रिटिश के शासन के टाइम में टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि सर का नाइटहुड के लिए उपाधि दिया गया था, राय बहादुर, ये सबको अब एबॉलिश कर दिया गया है, मीन्स इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये इसमें अगर ये जो टाइटल है इसमें क्या लगता है कि आर्टिफिशियली इसमें भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन जो भारत के प्रेसिडेंट है वो सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स दे सकते हैं जिन्होंने अपने नेशन के लिए, अपने फील्ड में, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ सिविल अवार्ड्स है, भारत रत्न है, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और मिलिट्री अवार्ड्स भी है यहाँ पे, वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जितने भी अवार्ड्स है वो टाइटल्स नहीं है। एजुकेशनल और जो मिलिट्री अवार्ड्स है वो प्रीफिक्स किए जा सकते हैं किसी के नाम के साथ। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 16.1. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.